Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आप सारे खड़े हो जाइए। खुदा का शुक्र करिए। खुदा ने फिर सानू ये बड़ा बड़ा मौका बख्शिया कि इस नसीब दे आप खुदा के विच इकट्ठे हो सके। खास कर किसी लोग चले हैं खुदा का शुक्र करते सी खुदा ने चंगा मौका सानू दिता ताकि आप घर में जा सकिए ताकि खुदा का काम खुशखबरी एक दूसरे को दे सके। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए दुआ करिए। खुदा जी मैं पास्टर जागरा को आगे बुलाऊंगा, आगे आओगे जागरा जी दुआ देने से रहनुमाई करिए। आओ सारे मिलके अपना प्रार्थना कर जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद 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 धन्नवाद। सारे जने मिलके दुआ करांगे, प्रभु दा शुक्र करांगे। आदर दे योग है, ओ महिमा दे योग है, ओ सलाम दे योग है, उच्चा करन दे योग है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਸਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੁਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਾਸਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God, Father. ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗ ਫਿਰਦਾ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ
चंगी लगती है, लोग चंगे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मसीहा बारे, बल्कि जो कायनात खुदा ने साढ़े वास्ते बनाई है वो भी चंगी लगती है। वो कदे भी अपने मुंह तो ये नहीं कहते खुदा ये साढ़े लिए तू ठीक नहीं बनाया। वो हर वक्त खुदा का शुक्र करते हैं कि साढ़े वास्ते खुदा ने सब कुछ चंगा बनाया। मिसाल के तौर पर अज आप अपने आप सोचिए, कल आप क्रिसमस मना जा रहे हैं, आज क्रिसमस ईव मना रहे हैं, खुदा के हजूरी में गीत गा रहे हैं, खुदा के हजूरी में आ रहे हैं, साज बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। क्यों कि कल खुदा ने सानू होर एक चंगा दिन जिहड़ा देण वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को असीं तैयार करना है। यीशु नूं
ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मिलके दादा के प्रभु दी महिमा वे होला ते जगा ढोल पे यारा, अज मैं जश्न मनाना पारा के मेरे सुने आना। छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं भंगड़ा पाना। छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, मैं भंगड़ा पाना।
ਇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੁੱਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਲੁੱਟਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ सब कुछ सानू मिल चुका है। हालेलुया। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਦੂਕ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ खुदा दे विच अगे होर बढ़ते हुए खुदा दी नवी ताजगी, नवी ताकत, नवी हिम्मत आपां खुदा कोलों मंगांगे, क्योंकि कल आपां फिर क्रिसमस लई इकट्ठे होना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। गाइए सर वजदे ने ढोल पे नचदे ने मोर पे, ओ कुड़ियां ने नच नच के गांदे जाइए, सब नूं सुणांदे जाइए यीशु मसीह दियां बातां। ओ जम्मिया 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 शाना वाला,
सारे मिल के गाओ। आ जाओ मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे। वजदे ने तपने, वजदे ने तपने, लगदा है तोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे। दुनिया बादशाहियां यीशु जब आए, दुनिया बादशाहियां यीशु जब आए, कांपता शैतान फिरे किया दुनिया ने। दुनिया बादशाहियां यीशु जब आए, कांपता शैतान फिरे किया दुनिया ने। कहंदा मैनू नसना यीशु दा ही दौरे, कहंदा मैनू नसना यीशु दा ही दौरे। वजदे ने तपने, वजदे ने तपने, लगदा है तोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे, यीशु तेरे आने दा पै गया शोरे। मैनू बचान लई रूप मेरा लै लिया, मैनू बचान लई रूप मेरा लै लिया, हर शानू छड्ड के ते बोल मेरे आ गया। मैनू बचान लई रूप मेरा लै लिया, हर शानू छड्ड के ते बोल मेरे आ गया। यीशु तेरे हत्थ विच जिंदगी ते मोरे, यीशु तेरे हत्थ विच जिंदगी ते मोरे। वजदे ने तपने, वजदे ने तपने, लगदा है तोरे, यीशु तेरे पै गया शोरे। सूरत का दियो सब नू मुबारकां,
ये ओ पछाड़ता पूरे प्रकार सबनू मुबारक कीर्तनों दे नच दे ये ओ पछाड़ता यसु अज साडा यसु आया सानू कदी कोले अज साडा यसु आया सानू कदी कोले वजदे ने कपूर लगदा है तोड़े यसु तेरे होले यसु तेरे खुदा दे ਲਈ जिन्ना भी असी वक़्त कर सकते हैं उन्ना ही साडे ਲਈ चंगा होएगा। इस दुनिया में भी आने वाली दुनिया में भी जिहड़ी खुदा यीशु सानू दिलाण वाला है। हालेलुया। ना वो थकदी है कदी भी थकदी नहीं है। मसीह ने बाइबल लिखा कि खुदा दे हजूरी विच बैठण वाले नवे सिरे तो ताकत बल पाउणगे। हालेलुया। इस वक्त मैं दरखास्त करूँगा बजर पाशा जी दरबार जी अगे आइए दुआ देते रहनुमाई करिए। मेरी ओर से और मेरी फैमिली की ओर से आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। खुदा उनको बड़ी बरकत है। ये क्रिसमस एंड नया साल जो आने वाला हम सब के लिए बहुत बड़ी बरकत आशीष लेके आए, एक बदारी लेके आए। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता। हालेलुया। दिल की गहराइयों से खुदावंद आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज के महान दिन के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया, जो मनुष्यजाति के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर आपने इंतजाम किया अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को खुदावंद पूरे जहां के कफारे के लिए खुदावंद आपने भेज दिया कि सब मनुष्य जाति आधार पाए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके इस महान आगापे प्यार के लिए। खुदावंद तेरा हम शुक्र करते खुदावंद आज के महान दिन के लिए। खुदावंद जो पूरे वर्ल्ड के अंदर खुदावंद पिता परमेश्वर तेरे इस जगत के अंदर आने की खुशी मनाई जा रही। खुदावंद जगह जगह खुदावंद इबादतें जो हो रही खुदावंद तेरे लोगों को ब्लेस कीजिए। खुदावंद पिता परमेश्वर क्रिसमस खुदावंद और नया साल खुदावंद सबके जीवन के अंदर बहुत बड़ी बरकत आशीष लेके आए। खुदावंद पिता परमेश्वर होने दे खुदावंद तेरा बेटा जब इस संसार के अंदर आया खुदावंद आज होने दे पिता परमेश्वर के तेरा बेटा खुदावंद हमारे हृदयों के अंदर जन्म ले। खुदावंद अपने हृदयों को हम खोले खुदावंद पिता परमेश्वर हमारे हृदय की चरनी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना पाए ताकि हमारे जीवन के अंदर खुदावंद तेरा बेटा प्रभु जी चलता फिरता और कार्य करता दिखाई दे। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते खुदावंद पिता परमेश्वर सब तेरे लोगों को ब्लेस कीजिए। खुदावंद तेरे इस खुदावंद छोटे झुंड के लिए प्रार्थना करते हैं। इस चर्च को बड़ी बरकत आज दे पिता परमेश्वर। एक क्रिसमस खुदावंद बहुत बड़ी बधाई लेके आए एक एक के जीवन के अंदर खुदावंद एक एक फैमिली को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। एक एक जीवन को ब्लेस कीजिए खुदावंद। बुजुर्ग बच्चे नौजवान खुदावंद बहन भाई जितने तेरे चरणों के अंदर बैठे हैं सबको बड़ी बरकत आशीष दे दिए खुदावंद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते खुदावंद आज की आराधना सभा खुदावंद
तेरे स्वर्गीय घरों के अंदर ग्रहण होने वाली हो पिता परमेश्वर। बड़ी बरकत आशीष देना तेरे वचन के द्वारा, तेरे गीत भजनों के द्वारा तेरे लोग बरकत आशीष पाए, एक नया मरसा, एक नई बदारी पाए। हालेलुया। इसे आने वाले नए साल के अंदर खुदावंद और ज्यादा तेरे लोगों को ब्लेस कीजिए। खुदावंद तेरी आमद के लिए हम सबको तैयार कीजिए। बरकत दो, आशीष दो। ये बात के बाकी हिस्से को आपके जिंदा जोरावर हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के स्मृति नाम से मांग लेते हैं पिता, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। इस वक्त आप केस मसीह का पैगाम जो है बदल राजू को सुनागे। आइए आप मसीह ਦੇ ਚੋਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ मसीह यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारक। बहुत जल्दी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10-15 मिनट में इसे ख़त्म कर दूँगा। बड़े गौर से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि वो मकसद खुदा जो हमारी ज़िंदगी में चाहता वो पूरा हो सके। आमीन। तो अभी हमने दुआ मांगी, आप सबने आमीन किया। ये आने वाला जो साल है, ये बड़ा दिन है, हमारी जिंदगियों की बेदारी और बरकत का कारण हो। हालेलुया। बरकत का कारण हो, इसके लिए काम करना पड़ेगा। मुकद्दसा मरियम को क्यों खुदावंद ने चुना? जो मुकद्दसा मरियम थी, जिसके वसीले दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में आया, उसे क्यों चुना? गौर से सुनिए। जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, खुदा उसे चुनता है। हालेलुया। जो रिसीव करता है फिर बाद में कंसीव करता है। हालेलुया। उसने रिसीव किया फिर कंसीव किया। प्रॉब्लम यहां हम रिसीव नहीं करते, फिर कंसीव कैसे होगा? जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, खुदा उसे ही चुनता है। कई बार हम अपनी मर्जी करते हैं, फिर असि कहने हैं कि खुदा सानू प्यार कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, खुदा प्यार करता है। वो प्यार करता है पर एतबार नहीं करता। वो हम प्यार हमसे करता है, अगर हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं तो वो हम पर एतबार नहीं करता। वो एतबार उस पर करता है जो उसकी मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। सो मैं बताता चलूं, यीशु मसीह का जिंदगी का जो आगाज था वो चरनी से नहीं हुआ था। एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट यीशु मसीह ने दी यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां बाब। यहूदियों को यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए क्या था? मगन था, और उसने देखा। बड़ी कमाल की स्टेटमेंट दी। तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने के दिन की आशा में मगन था, और उसने देखा। और यहूदी हैरान हो गए, तू तो भी 50 साल का नहीं है, तूने अब्राहम को देखा? तो मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, मैं था नहीं, मैं हूं। जैसे मूसा को कहा, जाके फिरौन से बात कर, वो कहेगा कैसे मैं पूछूं कौन था? तो कहे खुदा ने क्या कहा, जो मैं हूं सो हूं। हालेलुया। खुदा अब से है। और यूहन्ना रसूल ने तो हद ही कर दी बात की। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब, वो कहता है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यानी हमारा खुदा अब से है, वो चरनी में उसका आगाज नहीं हुआ। ये याद रखें, वो अब से है। आमीन। सो टाइम को समझते हुए मैं ज्यादा नहीं हवाला पढ़ाऊंगा, एक ही वर्ष पढ़ूंगा, उसको आपको टेक्स्ट आप अच्छी तरह उसका जानते हैं। मत्ती रसूल की अंजील
और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। निकालें मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और 21वीं आयत। जिनके पास है वो खोले मेरे साथ, जिनके पास नहीं है वो गौर से सुने। उसमें यूं लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि जो आगे लफ्ज बोलने लगा हूं वही इस आयत की जो मेन है, वही क्या है वो, क्योंकि वही अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ही इज ओनली वन, वही अपने लोगों का क्या करेगा, उनके गुनाहों से उनको छुड़ाएगा, रिहाई देगा, उद्धार करेगा, नजात देगा। नजात है क्या चीज? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन है खलासी, छुटकारा, मुक्ति, रिहाई, उसे कहते हैं सॉल्वेशन, उद्धार। अब जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो कोई लोग उसे टाइटल दिया हुआ था, कोई नबी कहता था, कोई उसे कहता था कि ये हीलर है, कोई उस्ताद कहता था, कोई कुछ कहता था। जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो जब वो मौजज़े करता था, कोई लोग कहते थे, उसके बड़े कामों को देखते थे, ये इब्ने दाऊद है, इब्ने आदम है, इब्ने इब्राहिम है, तरह तरह के नाम देते थे, तरह तरह के टाइटल देते थे। कोई कहते एलिया है, कोई कहते थे अलीशा है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। पर यीशु मसीह का जो अहम जो टाइटल था, जो मेन टाइटल था, वो था नजात दहिंदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का मतलब क्या है? यहोवा नजात। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का जो टाइटल है, जो मेन टाइटल है इस दुनिया में आने का, वो था कि लोगों को उनके गुनाहों से क्या करना? छुड़ाना, रिहाई देना। आज हमने एक ही टाइटल बना दिया है, हीलिंग, हीलर है, वो हीलर है। निकोदेमस पता क्या कहता है नए अकादमी में? कहता हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से क्या होकर आया है? उस्ताद होकर आया है, गुरु होकर आया है, यानी सिखाने वाला। यह है उसका टाइटल। सो तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। अब नजात की क्या जरूरत थी? क्यों ये जरूरत थी? क्यों साल्वेशन की जरूरत थी? मैं आपको थोड़े टाइम में आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं। खुदा ने आदम और हवा को बनाया और बागे अदन में रखा, कहा सब पेड़ों के फल खा सकते हो, जो बीच में है इसके कोई फल नहीं खाना। जिस दिन तूने खाया तो तू अब मर जाना। क्या है मर जाना? ये नहीं कि आंखें बंद होगी मर गए, मर गए, खत्म। हकीकत में जो मर जाना है उसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना, जुदाई हो जानी, सेपरेशन हो जानी। जिस दिन तूने खाया तू मरा। जिस दिन तूने खाया मेरा जलाल तुझसे, जिस दिन तूने खाया मेरा चेहरा तुझसे, जिस दिन तूने खाया तू नंगा हो जाएगा। जिस दिन तूने खाया मेरी और तेरी बातचीत बंद हो जाएगी। और हुआ क्या? आदम और हवा ने खा लिया और कलाम में लिखा है एक आदमी की वजह से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के वसीले मौत आई, और मौत सब पर फैल गई। और क्योंकि सबने क्या किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए?
हट गए। एक आदमी के वसीले एक इंसान ने गुनाह किया और सारी इंसानियत के अंदर गुनाह आ गया। और गुनाह इस तरह इंसान की जिंदगी में फैल गया जिस तरह एक बीमारी फैलती है। गुनाह ने इंसान को अपनी जकड़ में ले लिया। एक आदमी के सबब से, वजह से क्या आया? गुनाह आया और गुनाह के वसीले मौत आई। अब इसीलिए जो नबी हैं वो कहते हैं, कौन कहता है मैंने अपने को साफ कर लिया, अब गुनाह नहीं करता। जिसे हम दाऊद जिसे गाता है, जिसे हम गाते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। इसका मतलब क्या है? मिन्नू, दाऊद खुदा का चुना हुआ बंदा ये गाता है, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई ने। यानी इसका मतलब हम गुनाह में पैदा होते हैं। जो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता है वो किसकी नस्ल है? आदम की। तो उसके बारे में क्या लिखा है? एक आदमी के वजह से गुनाह आया और गुनाह के वसीले और मौत सब पर फैल गई और सबने गुनाह किए। सबने क्या किया? गुनाह किया। और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब पौलुस कहता है, जिस अच्छे काम का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे होता नहीं, जिस बुरे काम को, जिस बदी के बारे में सोचता नहीं, वो मैं क्या कर बैठता हूं। यानी इंसान गुनाह में पैदा हुआ है और गुनाह की मजदूरी मौत है। अब कौन है जो कहता है मैं मरना चाहता हूं? कोई है जी? कोई है जो मरना चाहता है? जे मरना चाहता है पता की कहते? उसे आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जो मरना चाहता है उसे आत्महत्या कहते हैं। और गुनाह की मजदूरी मौत है। अब कोई मरना नहीं चाहता। यहां तक गुनाह की मजदूरी मौत है। अब कोई मरना नहीं चाहता। अब यीशु मसीह के पास एक बार एक मसला आ गया। मसला क्या आ गया? एक औरत गुनाहगार पकड़ी गई, लोग उसे लेकर आए मसीह के पास और उस पर पथराव कर रहे थे। यीशु मसीह ने रोका और कहा, इस औरत को पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह ना किया। तो लिखा सब छोड़कर भाग गए, क्योंकि सब कौन थे? गुनाहगार थे। एक भी रास्तबाज नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब कोई मरना चाहता नहीं। यहां तक हिजकिया बादशाह के पास पैगाम आ गया, संदेश आ गया, मैसेज आ गया कि तूने अब क्या होना है? मर जाना। तो उसने क्या किया? ओ ऊंची ऊंची रोने लग गया, मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं। कोई नहीं चाहता मरना, कोई मरना नहीं चाहता। अब इस मौत की वजह क्या है? गुनाह। अब इंसान उस गुनाह में से निकलना चाहता है। उस गुनाह से निकलने का ही नाम क्या है? साल्वेशन है। उस गुनाह से रिहाई पाने का नाम उद्धार है, साल्वेशन है, मुक्ति है। अब हम अपने तरीके से उस गुनाह से निकलते हैं। हम खाने खिलाते हैं, हम दान देते हैं, तरह तरह के काम करते हैं कि हम उस गुनाह से निकल जाएं। पर कोई उस गुनाह से नहीं निकल सका, क्योंकि कलाम में लिखा है, हमारी नेकियां और हमारे अच्छे काम खुदा की निगाह में पता क्या है? फटे हुए पैनल के समान है। हमारी नेकियां, हमारे अच्छे काम खुदा की निगाह में फटे हुए, यानी पंजाबी में वो कपड़े फाटियां हुए लीरा वर्गे। तो कोई उस गुनाह से निकल नहीं सकता। लिखा है, हबशी अपना चमड़े को बदल सकता है और चीता अपने धब्बों को बदल सकता है। इसी तरह कोई गुनाहगार अपने गुनाह को नहीं साफ कर सकता। और गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। और कोई मरना नहीं चाहता। अब खुदा ने नबी भेजे ताकि मेरे लोगों को गुनाहों से क्या करें? निकाल दे। पर नबियों ने भी क्या किया? क्या किया जी? गुनाह किया।
और यीशु मसीह ने साफ कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। खुदा ने नबी भेजे और नबियों ने भी गुनाह किया, और खुदा फरमाता है, खुदा कहता है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो फिर किस चीज की जरूरत थी? कलाम में लिखा है तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, यानी व्यभिचार करेगा तो तू गुनाह करेगा। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा अगर तुमने औरत को या किसी ऐसी मर्द औरत को तुमने बुरी निगाह से भी देख लिया तो तुमने गुनाह कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? हम अपने सोचों में गुनाह करते हैं, हम अपने ख्यालों में गुनाह करते हैं, हम देखने में गुनाह करते हैं, हम अक्सर बातों बातों में गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं। पर ऐसी हस्ती की जरूरत थी, ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो देखे तो गुनाह ना करे, जो सोचे तो गुनाह ना करे, जो चले तो गुनाह ना करे, जो बैठे तो गुनाह ना करे। हालेलुया। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है जिब्राइल फरिश्ता गलील की कुंवारी मुकद्दसा मरियम के पास आता है और आकर क्या कहता है? सलाम तुझको। क्या कहता है जी? सलाम तुझको। आनंद और जय तेरी हो, सलाम तुझको, जिस पर खुदा का क्या हुआ है? फजल हुआ है, जिस पर खुदा का फजल हुआ है। अब जिस पर फजल होता है ना, फिर पता क्या चीजें मिलती हैं, बरकत मिलती है। आइए मेरे साथ देखिए लूका रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब कहता है तुझ पर फजल हुआ है। लूका रसूल और उसका दूसरा बाब कहता है 28वीं आयत, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो, यानी सलाम तुझ पर जिस पर अनुग्रह हुआ है, जिस पर अनुग्रह हुआ। फजल हुआ है। देख रहे हैं? आगे देखिए, अब जिस पर फजल होता है तो आगे लिखिया खुदावन तेरे, देखा जी, अब जिस पर फजल खुदा का होता है खुदा भी उसके साथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तेरे, इसमें यह लगता है कि फजल यानी खुदा खुद ही है। कहता फजल तुझ पर हुआ है, खुदा तेरे साथ है। ये बड़ा दिन आज इस बात की गवाही दे, आज हमने खुदा के फजल को लेना है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। दूसरे लफ्जों में कहूं, अगर खुदा का फजल हमारे पर होगा तो दूसरे लफ्जों में कहूं खुदा हमारे साथ होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा के फजल को नहीं जाने देना, आज खुदा के फजल को लेना है हमने। अगर खुदा का फजल हमारे पर होगा तो खुदा खुद ब खुद हमारे साथ होगा। आमीन। आमीन। क्या होगा? तुझ पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। और 35वीं आयत मैं स्किप करूंगा इस पैसेज को। 35वीं आयत उसमें लिखा है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जिस पर फजल होता है फिर खुदा का पाक रूप भी उसके ऊपर क्या करता है? जुम्मस करता है। आमीन। आमीन। उसी शख्स पर खुदा अपना पाक रूह नाजिल करता है जिस पर उसका फजल होता है। जी अगर फजल नहीं है ना तो खुदावन भी हमारे साथ नहीं है और उसका पाक रूह का मसा भी हमारे साथ नहीं है। आमीन। देख रहे हैं आप? फिर तीसरी बात, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हैं? तीन बातें मैंने बोली आपको। खुदावन तेरे साथ है, तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। खुदावन तेरे साथ है और पाक रूह तेरे ऊपर जुम्मस करेगा और खुदावन की सामर्थ तुझको घेरे रहेगी, उसकी कुदरत तुझे घेरे रहेगी। आमीन। आमीन। जिस शख्स पर खुदा का फजल हो जाता है खुदा उसके साथ होता है और उसका पाक रूह उसके ऊपर जुम्मस करता है और उसकी सामर्थ उसे क्या करती है? घेरे रखती है। आज खुदा के फजल को मांगे ताकि खुदा हमारे साथ रहे और खुदा की पाक रूह की जुम्मस हम पर जुम्मस करती रहे, पाक रूह की सामर्थ हम पर जुम्मस
करती रहे। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो देखे तो पाप ना करे, जो सोचे तो पाप ना करे, जो बैठे तो गुनाह ना करे, जो चले तो गुनाह ना करे। तो फरिश्ता आकर मरियम को कहता है, सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ है। तो बेटा इस दुनिया में आया, बेटे ने आकर कहा, मैं बाप में से निकला हूं, मैं और बाप एक है। जो बाप काम बाप करता है वही मैं करता हूँ। बाप गुनाहों की माफी देता है, मैं भी गुनाहों की माफी देता हूँ। एक शख्स को मसीह ने क्या कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। वहां पर कुछ बैठे थे, क्या पता क्या कहते, मनों में क्या सोचते, कहते कुफर बकता है। अपने मनों में क्या सोचने लगे जी, कुफर बकता है। मसीह ने कहा, दिलों में क्या सोचते हो। आसान क्या है कहना, अपनी चारपाई उठा और चला जा, या ये कि तेरे पाप माफ। कहते मैंने इसलिए कहा कि तुम जान लो और दुनिया जान ले कि दुनिया में एक ही हस्ती है जो गुनाहों को माफ कर सकती है। हालेलुया। एक ही शख्सी है, एक ही हस्ती है जिसे गुनाहों को माफी देने का सामर्थ्य है। हालेलुया। वो कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आया और दुनिया में आया ताकि हमें उन गुनाहों से नजात दे सके। साल्वेशन तो किस चीज की है, जहन्नुम के खौफ से रिहाई, बीमारियों से रिहाई, जहन्नुम की आग से रिहाई। इसलिए खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, ताकि हमें उस खौफ से, उन बीमारियों से, उन गुनाहों से, उन बदियों से, उन पापों से हमें क्या दे सके, रिहाई दे सके। हालेलुया। उसके आने का मकसद यही था, ताकि मैं और आप जो हम गुनाहों में जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे, हमें उनसे रिहाई देके आजाद करे और हमेशा की जिंदगी का क्या करे, वारिस ठहराए। हमें खुदा के आने का मकसद क्या था, हमें आजादी दे, खलासी दे, रिहाई दे, छुटकारा दे, ताकि हम आजाद होकर खुदा की बादशाही के क्या हो जाए, वारिस हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या मांगना है जी, खुदा का फजल। अगर खुदा का फजल हम पर होगा तो खुदा भी हमारे साथ होगा। आज आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका शुक्र करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। अपने होठों को खोलें। हालेलुया। कोई जन चुप ना रहे। हालेलुया। आज हम जिंदा खुदा को सेलिब्रेशन करने आए हैं उसकी आमद के लिए। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका शुक्र करते हैं। हालेलुया। आपकी हुजूरी के लिए आपका शुक्र करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावन जिस तरह फरिश्ता आकर खुदावन मुकद्दसा मरियम को कहता है, सलाम तुझ पर जिस पर खुदा का फजल हुआ है, उसी तरह खुदा आज अपने लोगों पर रहम कर, ताकि वही फजल तेरे लोगों पर हो और तेरे लोगों पर तेरी पाक रूह की सामर्थ झुमस करे और तू खुद खुदा अपने लोगों के साथ रहे और तेरी सामर्थ उनको घेरे रहे। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। पवित्र खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया। तेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया आसमान के नीचे, एक ही नाम है और यीशु आपका नाम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
शुक्र करिए इस जिंदगी कलाम ने तारे सेव करें एक नूर छा गया दुनिया पे, नूर छा गया दुनिया पे, लोगों मनाओ खुशियाँ, यीशु आ गया दुनिया पे, लोगों मनाओ खुशियाँ, यीशु आ गया दुनिया पे। यीशु आज गया फेरा पाज गया, यीशु आज गया फेरा पाज गया, दीवा दिल विच प्यार दा जगाज गया, दीवा दिल विच प्यार दा जगाज गया, दीवा दिल विच प्यार दा जगाज गया, कदे आया करो कदे आया करो, कदे आया करो कदे आया करो, गीत लिखे लिखे यीशु जी के गाया करो, गीत लिखे लिखे यीशु जी के गाया करो।
आइए आप अपनी सिरन खुदा के जीवित कामने खुदा का शुक्र करेंगे। खुदा ने सन मौका बख्शा इस रात को कर दिए पा खुदा दे तारीफ इकट्ठे हो सके खुदा की आवाज पा सके। हालेलुया 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 प्यारे आसमानी बाप ਅਸੀਂ बड़े बड़े शुक्रिया करते हैं बड़े तारीफ इकट्ठे हो सके खुदावन तारीफ गीत गा सके बड़ा कलाम सुन सके खुदावन साज बजा सके ਅਸੀਂ तेरे तो शुक्रिया है आए सारे भैन भरावां ने जिन्हें भी खुदा यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ खुदा यीशु अपने हम ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਿਆ सही सलामती खुदा यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ खुदा ਦਾ हवाले कर देंगे खुदा कल की आवाज दे रहेगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बढ़ के अपना हाथ बढ़ा तेरे लोगों के खिलाफ खुदा अपने खून में विश्वास करा यीशु मसीह के नाम से आए अपन दुआएं वाले कराएंगे हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक जाए तेरा शासन आवे तेरी मर्जी का आसमान की दुनिया तेरी जिंदगी में होगी साडे को दुनिया साथे साडे साथ संसार करवा जिससे अपने साडे को आपका साडे राजा हमारे सब राइट बचा कि पास हमेशा तेरा है आमीन। अब खुदा यीशु से फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक मुझे फादर शाकत सारे सारे नाम उन तो हमेशा तक हिंदी रहे आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस आवाज में सराहना धन्यवाद क्या का कीजिए मिलिए फिर दफा सारे बड़े दिन में बहुत बहुत मुबारक ये सुनना भी कामयाब है। शुक्रिया दस मिनट पहले एक दस घंटे अभी हो चुके हैं ठीक है खुदा ने दिन बनाए हुए ट्रेडिशन करके नहीं बल्कि मैं दूंगा खुदा शुक्र कर दिया मेरा मौका मिला तो सारे 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 बनो मेरे बनो बड़े दुनिया बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया जी।